परफेक्ट हो जाएगी। वेलकम टू डीआर टीएसपीआर शो. दिस इज डॉक्टर तंगेल्ला शिव प्रसाद रेड्डी alias डॉक्टर टीएसपीआर. नमस्ते, आदाब, hello, and again the favorite of many middle class educated students and women alike, Dr. Arvind Kushwaha. He is the community medicine specialist or social preventive medicine, which you call, because we really love to do show with him along with our Dada, Dr. Amitav Banerjee from Pune. He has taught us that we should speak only truth, that truth should be based on logic, so that the fear will go away, and that is science. So we both of us, we follow the same. We speak truth, logic, which is science. हम यही बात करते हैं, विज्ञान हो, सच्चाई हो, ताकि डर खत्म हो जाए. क्योंकि जब जब राजनीति में कोई बदलाव आता है, कोई मुश्किलात आते हैं, तब तब जो है कोरोना ने फिर वापस आने की एक प्रक्रिया बन गई है हमारे देश में. ये गलत है, क्योंकि हर नागरिक जानकार होना चाहिए. क्योंकि हम दोनों भी डॉक्टर है. ये हम पहले से बता रहे हैं, ये वेव थियरी, ये कोरोना डरोना, डर डरा के लोगों को इस तरह जानलेवा खतरा के मोड़ पर कोविड-19 को ले जा रहे हैं. क्योंकि जब टीबी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये जानलेवा रोग है, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? केवल आरटीपीसीआर ही क्यों किया जाता है? क्यों कोविड-19 वैक्सीन ही क्यों दिए जाते हैं? और वही खुद ने कहा 99.9% घर बैठने से सब कुछ रिकवर हो जाएगा. तो टीका क्या है? वो टीका में क्या है? हमारे गोरक्षक किधर गए? आरएसएस किधर गए? क्या इसमें हमारे गाय की रक्त नहीं है? तो हम बता रहे हैं आपको, कोवैक्सीन से लेके ऐसे जान चीज क्यों हमारे जिस्म में जानी चाहिए. सो वी आर ट्राइंग टू क्वेश्चन ऑल those people who want to protect the cows, the sacredness of Indian culture. Where are you? Including RSS. Covaxin contains cow blood. Chimpanzee cells in all that Covishield, and it has been banned everywhere. Create fear and sell vaccines. For how long? डर पैदा करिए, टीकाओं को बेचिए और लोगों को आपके गिरफ्त में रखिए. और जब जब भी राजनीति आपकी मुश्किल हो जाएगी, तब तब डर पैदा करिए. Whenever your political run becomes difficult, wake up Corona, bring it onto the people. Now people, are they going to subdue now? No. They are not going to be subdued now because they have understood. ఎన్నిసార్లు మీరు భయపెట్టి రాజకీయంగా ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తే కరోనా తేవడం ఎంతకాలం? విజ్ఞానం ఎక్కడ పోయింది? నిజంగా ఈ విజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి కోవిడ్-19 అయినా మరి అటువంటిప్పుడు టీబీ, డెంగీ, మలేరియా ఇవి ప్రాణాంతకం. వాటి గురించి ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? కేవలం ఆర్టీపీసీఆర్ఏనా? ఎంతకాలం ఈ టీకాలలో ఆవు రక్తం లేదా కోవాక్సిన్ లో? మరి ఎక్కడ పోయారు గోరక్షకులు, ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు? అటువంటిది ఇస్తా ఉంటే ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? అందు గురించి మళ్ళీ ఒక్కసారి డాక్టర్ అరవింద్ కుష్వాహాజీ, ఐ విల్ షో యూ సమ్ స్టేట్మెంట్స్, బట్ ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ హిస్ కామెంట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్, సార్? అగైన్ న్యూ వేవ్ థియరీ. We have already done so many shows with you. You have clearly come out saying that it is unscientific. Never will virus say, I will affect this age, that age. I will come this season, that season. Whenever politics is down, I will come. We have seen when Rahul Gandhi was doing his Jodo Yatra, our Union Health Minister through Parliament was appealing, shut down, otherwise COVID-19 will spread. Where is he now? Did it spread? Such nonsense. I mean, untruthful statements coming from the Union Health Minister on the floor of Parliament. How do you look at this scenario, sir? How long they are going to create this fear? Sir, firstly, we must understand that ये जो कोरोना वायरस है, ये एक सिंपल फ्लू वायरस है, जैसे और भी बहुत सारे फ्लू वायरसेस होते हैं. और ये पिछले 3 साल से, जैसे मैंने आपको बताया, कि पूरे दुनिया में फैला हुआ था. लेकिन हुआ क्या है कि जब इसने सबको इन्फेक्ट कर दिया है, तो अब इसका वैक्सीनेशन जो शुरू किया इन्होंने ग्लोबली, उसके कारण क्या हुआ कि वायरस को थोड़ा सा और स्मार्ट बनना पड़ा. जब स्मार्ट बनना पड़ा तो नया वेरिएंट रूप में बन के आ जाता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर इम्यून प्रेशर डाला.
कि भाई ये जो है हम वैक्सीनेशन कर करके इम्यून प्रेशर डाल दिया है, और इसके कारण नए नए वेरिएंट्स पैदा हुए। नए वेरिएंट्स पैदा होने से एक नया खतरा पैदा नहीं होता, ये समझने वाला बात। नया वेरिएंट इज नॉट इक्वल टू नया खतरा, ये समझने का चीज है। क्योंकि अगर आपका एक बार एक्सपोजर वायरस से हो गया, तो चाहे वो कितना भी रूप बदल लेगा, आपको सिर्फ इन्फेक्टिविटी बढ़ाएगा, लेकिन आपका जो बीमारी का जो सिवियरिटी है और डेथ है उसका खतरा नहीं बढ़ता है। तो एक बार अगर पूरे पॉपुलेशन को ये जो है इन्फेक्ट कर चुका है, तो इसके बाद अब किसी भी और नए वेरिएंट से डरने का कोई कारण नहीं है। अब रहा बात केस बढ़ाने का, वो हम जब चाहें तब अगर टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो केस बढ़ा सकते हैं, और केस बढ़ने से अगर हम चाहें तो एक नया वेव भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, एक इन्होंने थर्ड वेव का बात किया था, फोर्थ वेव का भी बात किया था, मॉडलिंग स्टडी जो थी आईआईटी कानपुर के, वो दोनों के दोनों झूठ साबित हुए। अल्टीमेटली कोई कोई ऐसा वेव नहीं आया। और आपने देखा होगा एक बच्चों का वेव का भी बात चला था, पीडियाट्रिक वेव का भी बात चला, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके हर हॉस्पिटल में एक पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किए गए, जिनके कि आज पूरा जो है वो इक्विपमेंट आज सड़ रहा है और शायद खराब भी हो जाएगा और नुकसान होगा हमारा। लेकिन कोई पीडियाट्रिक वेव नहीं आया, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता। जब वायरस कभी वो आइडेंटिफाई नहीं करता कि ये बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, वो सबको बराबर तरीके से ट्रीट करता है। वो भगवान की तरह होता है। भगवान जैसे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वैसे पैथोजन भी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो इस तरह से अब जो है किसी भी नए वेव का खतरा हिंदुस्तान को तो नहीं है। ये मैंने बहुत पहले से, 1 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ, जब से सेकेंड वेव खत्म हुआ है तब से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अब किसी भी वेव से डरने का जरूरत नहीं है। और नो वंडर, इसीलिए हर चीज अभी भी चल रही है उसी तरह से सुचारू रूप से। बीच बीच में आप केस नंबर बढ़ा करके या आरटीपीसीआर बढ़ा करके आप लोगों को डराना चाहते हैं। उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं है। इतना तो क्लियर है कि साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ना ही पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऊपर गैस नहीं करना चाहता। लेकिन कोई वेव का ऐसा खतरा मेरे को लगता नहीं हिंदुस्तान में कहीं है। आप अगर देखेंगे उठा करके वर्ल्ड का डेटा भी, तो आपको पता लगेगा कि ये जो डिजीज है ऑलमोस्ट सितंबर 22 के बाद से बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही चाइना, जो जिसने की दबा के रखा था, जबरदस्ती डेटा भी दबाया था और लोगों को भी दबा के रखा था और लॉकडाउन रखा था, जब लोगों में बहुत डिससेटिस्फेक्शन हो गया और लोगों ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया चाइना में, तो उनको मजबूरन खोलना पड़ा। जब उन्होंने खोला तो टेस्ट बढ़ाया और ये बताने की देखो तुमने बोला खोलने के लिए, तो हमने देखो खोल दिया, और अभी ये नतीजा ये है कि केस केस बढ़ गया। आपको जान के हैरानी होगी, चाइना में जो अकेले चाइना से ही जो पूरा दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में जो केसेस आया वो 4 मिलियन के करीब आया एक हफ्ते के अंदर। और वही डेटा पूरे वर्ल्ड के लिए है, यानी कि अगर चाइना का डेटा हटा दें तो वर्ल्ड में कोई भी केसेस हैं ही नहीं सितंबर के बाद से, बिल्कुल नील है। और आपको अब उन्होंने क्या शुरू किया नया, अभी H3N2 आना शुरू हुआ। H3N2 हमेशा रहा है, कोई नया चीज नहीं है। H3N2 सीजनल इन्फ्लुएंजा का एक स्ट्रेन है जो कि हमेशा रहा है हिंदुस्तान में या किसी भी जगह दुनिया में, अलग अलग मात्रा में। तो H3N2 का कोई नया वेव का खड़ा करना, इस तरह से लोगों को डराना, इस नए वेरिएंट के ऊपर इस तरह से लोगों को डराना ठीक नहीं है। और नई नई एडवाइजरी शुरू कर देना, दोबारा से टेस्ट ट्रैक पे, जब आपके सारे जो मेथड्स थे वो फेलियर साबित हुए, यानी कि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट वो फेलियर, लॉकडाउन फेलियर साबित हुआ, वैक्सीनेशन फेलियर साबित हुआ। अब इन चीजों की बात दोबारा करना मतलब ऐसे बोलना है कि जैसे अपना गलती दोहराना। आप वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं जो आपको पता लग चुकी कि ये अभी काम नहीं करता। तो ये मेरे ख्याल से अब न्यूज चलाना भी, किसी न्यूज चैनल को भी, कि ये नया वेव आ रहा है, नया केस बढ़ रहा है, ये भी एक गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म है और उनको शायद इन चीजों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। You mean to say that is not ethical journalism, because every time now and then channels beam Yes, up creating panic and yes. fear. This is not ethical Media, journalism, you say. media is the medium through which this fear is being generated. Everybody is watching that media, mainstream media, so called.
अब वो अगर वो पूरा सी के ऊपर अगर मान लीजिए 1 घंटे तक आप सिर्फ वेव का बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में वो घुस जाएगा कि अच्छा नया वेव आ रहा है, तो सब डर जाएंगे लोग। फिर क्या, आप जो मर्जी चाहे वो करेंगे, लॉकडाउन का बात करेंगे तब भी लोग मान जाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि वैक्सीन लगवाओ, बूस्टर लगाओ, ये करो, तो सबके मन में डर दोबारा से पैदा इसी तरह से होता है। मीडिया इज द मेन, I would say, I won't say culprit, but yes, it's one of the important through which fear is. या आपने मीडिया की बात की, इसीलिए मैं ये दोहरा रहा हूं आपको स्क्रीन पे। ये देखिए, बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। देखिए कितनी बड़ी न्यूज बनती है इंडिया, हर एक Correct, इसी तरह की न्यूज, correct, correct, हर correct, एक चैनल में यही न्यूज होएगा। correct. या बोलिए सर। Absolutely right. नहीं नहीं, हम्म आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस तरह का न्यूज लेकर के लोगों में डर फैलाया जाता है कि देखिए हम्म बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। हम्म मतलब उनको इसका कोई मतलब नहीं है कि इस मन में जाएगा मैसेज क्या हो। इट इज वेरी वेरी पुअर जर्नलिज्म। और ये देखिए प्रधानमंत्री जी भी कैसे, ये एक्टर्स क्या है, मैं समझता हूँ आजकल के हमारे राजनीति की एक्टर से ज्यादा हर मीटिंग में जा रहे हैं। इसके ये न्यूज के बारे में बाद में भी हमारे प्रधानमंत्री जो है, आप देखिए कर्नाटका जा रहे हैं, इतनी भीड़ के बात कर रहे हैं, जहां की कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी में भी बताने की कोशिश करिए केसेस बढ़ रहे हैं। जब लोग, इनको ये पता चला कि ये न्यूज बाहर आने के बाद कोई लोग उसको सीरियसली नहीं लिया, तो ये लोग चल पड़े राजनीतिक दल कर्नाटका इलेक्शंस में। प्रधानमंत्री जी कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मैं ये कहता हूँ सर, हमने आज 3 साल में ये देखा कि इलेक्शंस भी हुए, इस दौरान रैलीज भी हुई, भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन तब जो है कोई खतरा नहीं दिखाई दिया, तब इनको कोरोना बढ़ता नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब जब 1,000 केसेस हैं, जो कि आप अगर हिंदुस्तान की 100 पॉपुलेशन ये में ये भी अगर सुनिए, 1,000। एक बार ये भी सुनिए सर, ये तेलुगु मीडिया में వైరస్ देखिए। విస్తరిస్తోంది. దీంతో देखिए కేంద్రం తెలంగాణ సహా 6 రాష్ట్రాలను అలర్ట్ చేసింది. దీంతో కరోనాపై వైద్య శాఖ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించింది. अब देखिए कैसे हेडलाइन से लोग, देखिए कहाँ कहाँ चल रहा है ये। రాష్ట్రంలో మళ్లీ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. కొన్ని This is రోజులుగా plain 50కి పైగా stupidity. కేసులు నమోదవుతున్నాయి. తెలంగాణతో పాటు బార్డర్ స్టేట్స్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఏపీ, తమిళనాడులో కూడా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి अब చెందుతుంది. ये सुनिए, दिस इज द मेन स्ट्रीम न्यूज, इट इज सेइंग इट इज स्प्रेडिंग इन तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, border states. Then why is prime minister visiting? My straight question, why is prime minister visiting Karnataka? Yes sir, why is prime minister सर visiting अब Karnataka? Because it says Kendram, it clearly says Kendram, central government is trying to caution Telangana and border states like Karnataka, Maharashtra, so and so, Tamil Nadu. Then why is prime minister visiting? And you have seen prime minister attending high level meeting, and again he is doing, I want to show you that huge meetings, public meetings he is attending. No physical distance, no masks, and सर nothing. Look at this scenario. What should prime minister say? And these channels, whether V6 or that India TV news, what should they say? मैं सर आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अभी जब आप इलेक्शंस का डेट्स निकाल के रख लीजिए, रेड्डी जी, आपको बहुत काम आएगा। आप इलेक्शन का सारा डेट्स निकाल के रख लीजिए कि कौन सा इलेक्शन कब होने वाला है। तब आप देखेंगे कोरोना उस टाइम में गायब हो चुका होगा, 15 दिन पहले गायब हो जाएगा, इलेक्शन खत्म होते ही दोबारा से आ जाएगा। ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ, आप डेट्स को निकाल के रख लीजिए। कर्नाटका में कब इलेक्शन है, उससे 15 दिन पहले इलेक्शन से पहले गायब हो जाएगा, क्योंकि तब रिलीज होनी है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो दोबारा से वापस आ जाएगा। ये आप मार्क कर लीजिए, इट इज बिकम अ पैटर्न। इट इज बिकम अ पैटर्न। हर जगह इलेक्शन जब होते हैं तो उस टाइम में कोरोना थोड़े दिन के लिए चला जाता है, उसको बोलते हैं आप विदेश में यात्रा करके आओ। तब तक हम हिंदुस्तान में इलेक्शन कर रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं। जब वो इलेक्शन खत्म हो जाते हैं बोलते हैं आप वापस आ जाओ, आप टूर हो गया आपका खत्म, अभी इंडिया में वापस आ जाओ। ऐसे करके मैं चल रहा है। और एक वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तेलंगाना में भी हाई लेवल मीटिंग, केसीआर, मिस्टर केसीआर, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव इज द चीफ मिनिस्टर, is the president of Bharatiya Rashtra Samiti from TRS, it is BRS. Yesterday he was addressing a public meeting in Maharashtra. Prime Minister in Karnataka. Center says Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka should be on high alert. Now, how do you look at this? KCR here, chief minister, he is addressing a meeting in Maharashtra. Karnataka prime minister addressing public rallies. In the, how do you look at this scenario? क्या मजाक है ये? लोगों में किस तरह की ये समझते कि लोग पागल है या लोग जानकार नहीं है?
आप ही Yes. सर दिस इज क्लियर कट, जो क्या बोलना चाहिए, एक आम जनता के साथ एक बहुत ही क्रूअल जोक वो खेला जाता है। जो कि आप सोचिए, एक आम आदमी जो कि तेलंगाना में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, उसको लगता है कि बहुत बड़ा यहाँ वेव आने वाला, कुछ आने वाला है। एट द सेम टाइम जो बाकी इनका एक्टिविटीज है, कौन कहाँ रैली कर रहा है, कब इलेक्शन आने वाला, बिल्कुल अनहिंडर्ड चलता है। तो मतलब क्या बोलूं मैं, एक आम जनता के लिए एक बहुत ही कष्टदायी सिचुएशन। चाप कैसे है, खड़ा कैसे नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट में कैसे नहीं आया। और प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका एक ही तरीके से बिहेवियर है। कोई भी इस मामले में खड़ा होके अपोज नहीं करता कि ये रूलिंग पार्टी अच्छा नहीं कर रहा है इस कोरोना का मैनेजमेंट, क्योंकि शायद वो सबके लिए एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट टूल बन चुका है। यू मीन टू से फार्मेसी इंश्योरेंस जो ऐसा सब कुछ पैसा देता है हर एक राजनीतिक दल, राजनीतिक, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है ओपेक हो गए। आप इलेक्ट कौन सी पार्टी को कितना पैसे कहां से मिल रहा है, यू कैन नॉट सोर्स इट नाउ। They have become opaque. You cannot get any information. All these political parties have become one. They passed a legislation during COVID-19. Is that the reason why these political parties, whether it is opposition, Rahul Gandhi doesn't say anything. During Jodo Yatra, Union Minister was asking him, stop, it is spreading. He completed Yatra. Why he did not move a privilege motion against the Union Health Minister? Why Congress party did not do that? Why other political parties did not do that, including Communist, which goes agog? And see how they are trying to impose another new health bill from Kerala. Everything starts from Kerala. All these viruses, it has become a big ground. Educated society in Kerala, they are trying to impose everything on them. How do you look at this scenario, sir? Sir, if you look at केरला कन्वेंशनली हमारे लिए एक मॉडल स्टेट एक जमाने में होता था। जब हम हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करते थे तो हम बोलते थे केरला का हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम सबसे अच्छा है, और उसके जो यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच करते हैं, हिंदुस्तान से बहुत आगे है उस मामले में। लेकिन जब कोविड आया तो जो कोविड में इन्होंने जिस तरह इनिशियल लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट लगाया, उसके कारण जो इनको थोड़ा इनिशियल केस कम हुआ, तो अपने आप को ऐसे दिखाया जैसे कि इनका बहुत सक्सेसफुल मॉडल था केरला का, आपको याद होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि इज नेवर एन आंसर, क्योंकि अल्टीमेटली वायरस को पूरे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करना ही है। इतना जल्दी में नहीं कर सकते जो किया, और जबरदस्ती वैक्सीन लगाने का सबको लगाया, और उसका नुकसान हम लोग सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन पैंडेमिक्स इस तरह से 3 नहीं चलते। पैंडेमिक्स नॉर्मली 6 महीने से 1.5 साल के अंदर सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक दफे इन्फेक्शन अगर सबको कर देता है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है, तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे लगता है जैसे इस पैंडेमिक को ये लोग 2030 तक चलाने का पूरा प्लान ऐसे लग रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इसमें WHO सबसे ज्यादा बड़ा क्या बोलना चाहिए, जिसका गलती है। और WHO जो कि आज की तारीख में अगर 60,000 केस भी अगर दुनिया में कॉमन कोल्ड का हो रहा है, तो उसको आप गिन क्यों रहे, आज भी गिन क्यों रहे? कॉमन कोल्ड को कब से गिनना शुरू कर दिया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को हमने कब से गिनना शुरू कर दिया? आप गिनते तो शायद आज भी अभी भी पैंडेमिक्स में ही पूरा मैनकाइंड अभी तक पैंडेमिक में ही जी रहा होता था जब से मैनकाइंड शुरू हुआ है। अगर ऐसे गिनते तो फिर हम किसी भी बीमारी को गिनेंगे तो इससे ज्यादा निकल आएंगे। लेकिन ये WHO का टाइम मेरे ख्याल से आ गया है जब it should be declared as the most discredited health agency, and all countries should withdraw from this membership of this WHO. And I think that is probably the only way forward, जिससे कि हम पेंडेमिक से बाहर आ सकते हैं, कि WHO को ही बाहर करना पड़ेगा तो पेंडेमिक शायद खत्म होगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। और बिल गेट्स आके गई हैं, उसके बाद से फिर ये शुरू हुआ। और एक बात है, क्या वो सर वो हेल्थ एडवाइजर है, हेल्थ एडवाइजर टू टेड्रोस। He is health He's a health advisor. Tedros. And not only that, when you said rightly, I got one point. Even in all radios में they are advertising flu vaccine. Says that Abbott company, it is sponsored by them.
on the advice of WHO in India. How logic is this, sir? Where is flu for us? Because Americans now they have understood Pfizer trials, drug trials, vaccine trials. Now they are not taking any vaccines there. So they want to dump even flu vaccines in India again? Because the reason is very simple. In US, the information is reaching to everyone, and there is a divergence of opinion, and there is a more clarity and freedom of speech there. So therefore, what happens is everybody is getting that information. And even in America, the uptake of COVID vaccine has been very poor, and even flu vaccine. Because these vaccines, even after taking, they may not protect you against infection also, and they may not protect you against death also. Because the vaccines against common cold viruses never really are required in the first place. सबसे पहला बात यही है कि कॉमन कोल्ड वायरसेस में आपको इनको जरूरत ही नहीं है. आपको करना ही है तो कुछ बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है उनको आप कवर करिए, बाकी को आपको जरूरत नहीं है इसको देने का. इसीलिए नो वंडर nobody is taking it even in US, neither in India also, and everybody has dumped the COVID vaccine now. आपने देखा बूस्टर का कवरेज 10% से 15% से ज्यादा नहीं है जो पहले लोगों ने पहले जो इनिशियल वैक्सीनेशन लिया था. उसका रीजन बड़ा सिंपल है, लोगों को पता लग गया कि इसका ना तो ये काम करता है, इसके बाद भी लेने के बाद भी मुझे इन्फेक्शन होता है. तो लोगों ने समझ में आ गया कि ये वैक्सीन यूजलेस है एंड इसका हार्मफुल भी है, और इसलिए इसको अभी जो है इसका कोई सपोर्ट पब्लिक में नहीं मिल रहा है. अब क्या करो, नया कुछ लेके आओ, H3N2 लेके आओ, इन्फ्लुएंजा लेके आओ, कुछ नया मंकी पॉक्स लेके आओ, और पता नहीं क्या क्या लेके आओ, और लोगों को डरा के फिर से कुछ नया एक वैक्सीन ठोक दो. तो अब ये लोगों को अब काफी स्मार्ट हो गए लोग, अब उतना ज्यादा जल्दी इनके बहकावे में आने वाले नहीं है. तो और एक बात साहब, जब एयरपोर्ट्स में देखेंगे और कोई अच्छे ऑफिसेस में अभी तक मास्क, फिजिकल डिस्टेंस यही दोहरा जा रहा है. अब रेडियो भी पिकअप कर लिया है जैसे चैनल्स के जैसा. ये कैसे देखते हैं आप? जब है ही सर नहीं बड़ा था. सिंपल है. जब जब साइंटिफिक स्टडीज जब एस्टेब्लिश कर चुकी हैं कि मास्क से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, सोशल डिस्टेंसिंग से भी प्रोटेक्शन क्लोज स्पेसेस में नहीं मिलता है, तो अब इनका दोबारा से इस्तेमाल करना या इनको एनफोर्स करना सिवा बेवकूफी के और कुछ नहीं है. लेकिन होता क्या है, ऐसा करने से लोगों में एक डर रहता है और एक कंप्लायंस का ये लोग कोशिश करते हैं. दे आर ट्राइंग टू इंश्योर कंप्लायंस एंड कंट्रोल थ्रू फियर. पब्लिक हेल्थ में फियर का इस्तेमाल सबसे खतरनाक चीज है. जहां पब्लिक हेल्थ में फियर को यूज करेंगे, अल्टीमेटली कुछ दिन बाद काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और लोग उसको नहीं मानेंगे. ये बहुत पुराना हमारे लेसन हैं जो कि आज से नहीं, हमने पुराने जो फ्लू हुआ था 1918 1919 में, आज से 100 साल पहले भी, उसमें भी इन्होंने जबरदस्ती लोगों को बंद करके ये किया था, लोगों को जबरदस्ती एनफोर्स किया था. उसके अगेंस्ट में तब भी लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए थे. और आप अगर उसका हिस्ट्री उठा के देखेंगे स्पेनिश फ्लू का, तो जो है उस टाइम तक तो ये वैक्सीन भी नहीं आया था. तो मास्क वास्क यूज करने को बोला, वो भी कपड़े वाला जिससे रुकता नहीं है वायरस. आज N95 से नहीं रुकता तो आप कपड़े का वो लगा के क्या हासिल करेंगे. इसका कॉकरेन स्टडी जो है, पूरा जो सारी स्टडीज का जो होता है, एक क्या कह लीजिए एक एनालिसिस होती है, उसे हम कॉकरेन जो ग्रुप है इनका जर्नल्स का, ये कॉकरेन में एविडेंस आ चुका है कि मास्क डू नॉट प्रोटेक्ट. तो ये बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश हो चुका है. सो व्हाई आर वी अननेसेसरली ट्राइंग टू एनफोर्स दीज इश्यूज. इसका शायद एक ही रीजन है कि लोगों को थोड़ा सा डर रहता है. कंप्लायंस शायद उनकी इंप्रूव होती है और लोगों को जो है ना, जो है लगता है कि हमारा देखभाल हो रहा है, पर ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. और लास्ट तो why there is no discussion on the floor of assembly or parliament? Why they are not involving people like you, community medicine specialists especially? That is one question. The second aspect, how dangerous COVID-19 is when you compare TB, dengue, malaria, typhoid or other diseases. When people are dying, 27,000 people die on average in India. Where is COVID-19 and why TB or dengue, malaria, typhoid, other diseases are not being tested? सर सिंपल सा बात है कि अगर हम लोगों का बात, हमारे जैसे लोगों का, या साइंटिफिक जो पॉइंट्स बोलते हैं या जो एविडेंस के साथ बोलते हैं, अगर इनका बात सुन लेंगे तो फिर क्या होगा कि जो झूठ है वो बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा.
अगर झूठ नहीं चल पाएगा तो इसका जो टूल है, कोविड वेव का जो टूल है, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे जनता? इसलिए ये जो आर्गुमेंट्स हैं, आप देखिए, आप जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, 800 से 1000 लोग टीबी से हिंदुस्तान में रोज मरते हैं। लेकिन क्या टीबी के लिए कभी किसी ने बोला कि आप मास्क लगाइए? जबकि ज्यादा डेडली है, उसकी मोर्टालिटी ज्यादा है, 5% है। लेकिन कभी टीबी के लिए आपने, टीबी से बड़ा तो कोई पैंडेमिक दुनिया भर में कभी नहीं हो सकता। ये कोरोना तो उसके क्या बोलते हैं, कहीं पे भी नहीं खड़ा होगा। अगर आप कर दीजिए तो इसका तो स्टेचर जीरो है। अगर टीबी जो जिसे हम जाइंट किलर बोलते हैं, उससे 800 से 1000 लोग मर रहे हैं डेली हिंदुस्तान में, आज उसके ऊपर कभी चर्चा क्यों नहीं होती? उसके ऊपर कभी बात क्यों नहीं हुई कि हमने मास्क क्यों नहीं लगाया अभी तक इतना दिन से, और सोशल डिस्टेंसिंग का उसके ऊपर क्यों नहीं बात होता? क्योंकि चक्कर ये है कि ये चीजें नहीं काम करती हैं और इसका जरूरत नहीं है। लेकिन उसको आप, कोविड को आपने एज ए टूल यूज करना है, जिससे कि किया जा सके और लोगों को डराया जा सके, जिससे आप अपना एजेंडा थोप सके, चाहे वो वैक्सीनेशन का एजेंडा हो, चाहे वो जो है कुछ भी हो, कंट्रोल का एजेंडा हो। तो ये प्रॉब्लम है। तो आप डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, क्या ये फार्मा और इंश्योरेंस कंपनीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देने का और लोगों को डरा के इस तरह लगाने से, जो भी बाकी के डिजीजेस के ऊपर जो उन्होंने इंश्योरेंस किया है, फार्मेसी उसके ऊपर खर्च करनी है, तो उसको उनसे छूट मिलेगी। नया जो है डिजीज से फिर नया इंश्योरेंस, और इस तरह डर चलता ही रहेगा और पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग आते ही रहेगा। और क्यों ये ये पॉलिटिकल पार्टीज, इनको पहले नहीं दिया जाए, उनके उनके फैमिलीज को, इनको क्यों नहीं दिया जाए? फार्मेसी हो, इंश्योरेंस हो, पॉलिटिशियंस, उनके फैमिलीज को दुनिया भर में उनको अभी पकड़ पकड़ के क्यों नहीं दिया जाए? अभी एक कंट्री से डेटा आया, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आया है कि आई आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंट्री, इट इज अ यूरोपियन कंट्री, है ना सर? या वहां से डेटा आया है कि, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, कि 30% ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव फेक देयर वैक्सीनेशन। फेक्ड, फेक्ड का मतलब है उन्होंने लगवाया नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उन्होंने लगवाया है, और शायद उसकी जगह सलाइन इंजेक्ट हुआ या कुछ और इंजेक्ट हुआ। ये एक डेटा अभी किसी कंट्री से है, आप समझ रहे हैं? तो या आपने वैक्सीन लगवाया, लेकिन एक्चुअली पॉलिटिशियंस जो थे उस कंट्री के, उन्होंने वो नहीं लगवाया। तो जिनको जानकारी है कि अच्छा ये तो नुकसान कर सकता है, तो उन लोगों ने हो सकता है ना लगवाया। तो इसमें दो ही लोग रहे, इनको जानकारी रही, या फिर जो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, जो समझ पाए कि इतनी जल्दी वैक्सीन जो बना है वो एक्सपेरिमेंटल है, उसको नहीं लगाना चाहिए, तो वो लोग स्मार्ट लोग थे, जो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने भी नहीं लगवाया। तो इंडिया में भी हैं, और यूरोप में भी बहुत, और अमेरिका अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये समझ लिया था कि वैक्सीन नहीं लगाने की जरूरत है, तो बहुत लोगों ने नहीं लगाया। वंडरफुल। तो अब लास्ट मैसेज, व्हाट इज दैट यू वांट टू गिव एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑल चीफ सर, मिनिस्टर्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स? I would say that very simply, India should unilaterally declare, it should have declared long ago, but anyway, it should COVID pandemic as a closed chapter forever itself. This to say since the end wave, कि for COVID pandemic end out, finished. It should not anywhere on the media or anywhere in this thing. Whatever other things that we want to do, the scientific studies and all, that can carry on unhindered, but on the quiet, without bringing it to the media, unnecessarily trying to scare people or trying to instill fear in the minds of the people. That is what I should give the message, that for India, COVID pandemic is long over, and we should unilaterally declare this as a closed chapter as far as India is concerned, irrespective of what the WHO does or doesn't do. And what is the message for citizens, concerned citizens? Citizens can understand that the COVID pandemic for them is no longer any threat, except for very high risk people, for which any other virus, not COVID alone, will always remain a threat. So therefore, taking a very heightened fear about COVID is unfounded, and it should never be
taken as a threat anymore. And those who are infirm, who are old, they should be looked after, and they should be admitted if required. But otherwise, for every other healthy individual in Indian, this is no longer any threat, and they can continue with their lives as we are continuing, without looking at what media is saying, what the press is saying, whatever unnecessary scare is being created. Do not fall prey to it. Two sentences in Hindi. 1 minute ही बचा है. जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको अब कोविड नाम के वायरस से दोबारा डरने की कोई जरूरत नहीं. आपको अगर कोविड एक बार हो चुकी है या आपने वैक्सीन ले ली है, दोनों चीजें हो चुकी हैं, तो अब आपको इससे कोई भी खतरा नहीं है. आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी जिंदगी जी सकते हैं. और ये एक वायरस बहुत ही कॉमन कोल्ड वायरस की तरह होता है, जिसका कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ही नेग्लिजिबल है, और जिससे ज्यादातर लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं. अब आपको और इससे ज्यादा खतरा होने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको डर है. दोबारा किसी वेव के आने का भी खतरा हिंदुस्तान में नहीं है, जैसा मैं आज पिछले 1.5 साल से ज्यादा से कह रहा हूँ, जब से सेकेंड वेव खत्म हुई है. और अब आप बिल्कुल जो है, मेरे हिसाब से तो ये पैंडेमिक बहुत पहले हिंदुस्तान में खत्म पहले हो जानी चाहिए थी, पर अगर नहीं भी हुई है, आप इसको अपनी तरफ से खत्म कर सकते हैं पैंडेमिक को, और आप तसल्ली से अपनी जिंदगी में अपना कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो ये है आज मैसेज हमारे डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी. इसके पहले एम्स नागपुर में थे, अभी उत्तर प्रदेश गए हैं, वहाँ प्रिंसिपल बन रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के. उनको शुभकामनाएं DRTSPR चैनल से, क्योंकि ऐसे लोग ही रहना चाहिए हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल्स हो या ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स हो, क्योंकि दे ऑलवेज स्पीक. ये लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और वैज्ञानिक रास्ते पे चलते हैं. सच्चाई और विज्ञान के साथ में ही हमारी सोच जो है बढ़ती है, क्योंकि हम जो भी है एक समाचार देते हैं, क्योंकि आप हर एक नागरिक, और यही है राज्यांग व्यवस्था है, वो संविधान है, तो आपको सही समाचार हम देते हैं और निर्णय लेना आपका काम है. वी आर हियर टू प्रोवाइड यू करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वंडरफुल गेस्ट लाइक मिस्टर डॉक्टर अरविंद कुशवाहा. Congratulations to him. He is going to become the principal of Thank you, sir. another medical college in Uttar Pradesh. He has resigned and he has gone back from AIIMS to Nagpur to Uttar Pradesh. He is मेरा going to- मेरा मेरा एम ये रहेगा सर, यहाँ पर मेरा एम ये रहेगा कि यहाँ लोगों को जो मेडिसिन का सही फैसेट है, लोगों को समझाने में कामयाब रहूं, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को. और हम बात करें एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन कोर्स की तरफ, जिसमें कि सारे फॉर्म्स ऑफ थेरेपी को जो सिखाइयाँ हैं, और जो है जो इसके खतरे हैं, चाहे किसी भी Yeah. कोई भी जो है सिस्टम ऑफ मेडिसिन खराब नहीं होता है. उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, और उस पर हमें काम करना चाहिए. तो इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग इज एथिकल मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. These are the three things that I would like to. What is the third thing, sir? What is the third thing? What is the third thing? We could not hear. Integration of medicine. Second is ethical medicine, practice of ethical medicine. Third is practicing medicine scientifically, scientific medicine. Wonderful, wonderful. This is the ultimate message from Dr. Arvind Kushwaha. Don't fear. We have given you the information. Decision is yours, because you are a constitutional authority. You have seen KCR Telangana CM visiting Maharashtra, Prime Minister doing big rallies in Karnataka, in spite of the warning from center that both Maharashtra, Telangana and Karnataka, there is a threat of this virus. Why this threat is not coming to their public meetings in Maharashtra, in Telangana, as well as in Karnataka, you have to understand. So that is the reason why the best way is you become knowledgeable. Understand with perfect information, truthful information, then you decide, because it is your body, it is your life, it is in your hands, so that once you understand, you can take care of your family, your society, your district, your state, and your country, so that no outside force like WHO can influence us, because India is totally different when you compare to other countries like Europe, or for that matter, America. The weather is different, the lifestyles are different, eating habits are different, our immunity, natural immunity is different. So believe in your own natural immunity. It comes within your own self-belief, by understanding what we call truth, science, and logic. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel,
and environment people, DRT expert channel, they're all in larger public interest. Now you need to really and actively support them. Thank you very much, Dr. Arvind Kushwaha once again. Thank you, sir. Thank you, sir. And all the best wishes to you. Let us integrate Thank you, sir. all the medicine. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.